السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں، آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ کافی دنوں بعد آج پھر ہنستے مسکراتے کرداروں جلیل میاں اور راجہ کی ایک زبردست سی کہانی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک دفعہ پھر کچھ ہنستے مسکرانے کا سامان کرتے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے عقدے ثانی۔ اپنے شوہر کو دوسری شادی سے روکنے کے لیے اس کی بیوی نے جلیل میاں کی خدمات حاصل کی تھی۔ بظاہر عام سے نظر آنے والے اس معاملے میں جلیل میاں خدائی فوجدار بن کر کود پڑے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ معاملہ کتنا خطرناک اور سنگین ثابت ہوگا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شنوں نے اپنے آنسوؤں سے رومال کو تر کیا اور پھر اسے نچوڑ کر اپنی چھوٹی سی ناک صاف کی۔ بادلے نخواستہ میں نے کوئی 10واں رومال اس کی طرف بڑھایا۔ خدا کے واسطے شنوں، کیا خالہ لاؤڈ سپیکر نے کوئی اور کاٹھ کا الو ڈھونڈ لیا ہے؟ نہیں، اس نے پھس پھس کر کے روتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر ابا میاں یاد آ رہے ہوں گے؟ نہیں، اس نے اسی انداز میں 10ویں رومال کو تر کر کے نچوڑا۔ آج ہی میں نے بدقسمتی سے درجن بھر رومالوں کا ایک پیکٹ لیا تھا۔ یہ سب خاصے مہنگے رومال تھے۔ کاش کہ میں رول ٹیشوز لے آتا یا پھر ایک بڑا تولیہ لے آتا، تو پھر اتنے سارے رومال برباد کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ میں نے بھنا کر پوچھا۔ شنوں نے برا منایا۔ برباد کہاں کر رہی ہوں؟ اس نے 10واں رومال مجھے پکڑایا، جسے میں نے عقبی گلی کی طرف روانہ کر دیا اور 11واں رومال اس کی خدمت میں پیش کیا۔ خاصے رومانٹک موڈ میں شام 5:40 پر میں نے اسے چھت پر بلایا اور اب 6:22 ہو چکے تھے۔ شنوں نے سوائے آنسو اور نوزی بہانے اور رومال خراب کرنے کے کچھ نہیں کیا تھا۔ ایمان کی بات ہے، وہ اس عالم میں بھی اچھی لگ رہی تھی، مگر میں اس کی آپس میں نااتفاقی کا شکار غزالی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ راست اقدام سے یوں مجبور تھا کہ شمال مغرب میں عاشق جانباز چوتھی بار محبوبہ کے بھائیوں سے پسلیاں توڑوانے کے باوجود مستقل مزاجی سے ڈش اینٹینے کی طرح شمال مشرق کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بدقسمتی سے اس کی راہ میں ہم حائل تھے۔ اسی طرح جنوب مشرق میں ایک اخلاق صدار قسم کے بڑے میاں جوانی کے کاموں سے تائب ہونے، بلکہ قدرتی طور پر تائب ہو جانے کے بعد اب سر شام ہی چھت پر آ کر محلے کے نوجوانوں کے اخلاق پر کڑی نظر رکھنے لگے تھے۔ اس وقت وہ کسی جاسوس سیارچے کی طرح اپنے تمام تر سینسرز ہم پر مرکوز کیے ہوئے تھے، لہٰذا میں شنوں سے 1 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ کوئی 1 لیٹر آنسو اور 1/4 لیٹر مائع ناک سے خارج ہونے کے بعد شنوں نے پہلی بار غور سے مجھے دیکھا۔ جلیل، تمہارے گال پر یہ نیلا نشان کیسا ہے؟ ایک پرانا دوست مل گیا تھا، میں نے مسکرا کر کہا۔ تمہارے پرانے دوست اسی طرح ملتے ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ بات صرف اتنی تھی کہ کل چاند میاں چاند باندوں کے ساتھ بائک پر آ رہے تھے، غالباً سینما سے، اور خاصی ترنگ میں تھے۔ ان کے رنگ میں بھنگ ایک کتے نے ڈالا جسے موٹر سائیکلوں سے ریس لگانے کا شوق تھا۔ غالباً کتوں کی نفسیات میں تیز رفتاری سے بغض کا کوئی خلل پایا جاتا ہے۔ جہاں کوئی تیز رفتار چیز دیکھتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض زیادہ ہی خبیث الفطرت کتے ہیں جو خواہ مخواہ سست رفتار چیزوں کو تیز کر دیتے ہیں، جیسے یہ خاکسار۔ اکثر اوقات رات گئے کہیں سے واپسی پر جب مارے تھکن کے چلنا بھی محال ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے نیند میں قدم رکھتے کہیں ہیں اور پڑ کسی کتے کی دم پر جاتے ہیں جو نہ صرف نیند ہوا کر دیتا ہے بلکہ 10 منٹ کی مسافت 1 منٹ میں طے ہو جاتی ہے۔ خیر، کتے کی اس ریس سے چاند میاں اتنے بدآواز ہوئے کہ بائک کا اگلا پہیہ کھلے مین ہول میں اتار دیا۔ زبردست جھٹکے سے پھول جیسی چاند بانو یوں ہوا میں اڑی جیسے کوئی دھنک رنگ بادل ہوا میں اڑتا ہے۔ میں بے اختیار اسے کیچ کرنے کے لیے بھاگا، مگر بدقسمتی سے میں اس کتے کو فراموش کر بیٹھا جو بائک کے ساتھ ریس لگا رہا تھا۔ اس نے صدائے احتجاج بلند کی اور میں چاند میاں پر جا گرا جو بائک کے ہینڈل سے لٹک رہے تھے۔ اس نے چلا کر میرے آباء و اجداد کو یاد کیا، بلکہ بالکل غلط انداز میں انہیں یاد کیا۔
चांद मानो बानो सामने से आते अनूकी पहलवान की गोद में जा गिरी। उसने अपना नाम तो अनूकी रखा था, लेकिन तीसरी दुनिया का नुमाइंदा होने की वजह से यार लोगों ने उसे अनोखी पहलवान कहना शुरू कर दिया था। चांद बानो को कैच करते हुए वो इतना ही खुश था जितना कोई तीसरी दुनिया का फ़र्द अमेरिका जाकर हो सकता है। मेरा मुंह बाइक के हैंडल से लगा था और मुझे रात में सूरज नज़र आ गया था। जब मुझे ज़रा होश आया तो मेरे नीचे दबे चांद मियाँ ने इस फहरिस्त में अनोखी पहलवान के आबा व अजदाद को भी शामिल कर लिया था, जिसे वो बुरा भला कह रहा था। अबे छोड़ मेरी बीवी को। लो, मैंने कहाँ पकड़ रखा है? अनोखी पहलवान ने वालेहाना अंदाज में चांद बानो की तरफ देखा जो शर्मा रही थी। ये तो खुद ही धम से कूदी है। नीचे उतार हरामजादे। चांद मियाँ किसी ज़ुकाम ज़दा हाथी की तरह चिंगाड़े। बादले न खास्ता अनोखी पहलवान ने चांद बानो को नीचे उतारा और चांद मियाँ से कहा, जब बीवी संभाली नहीं जाती तो शादी क्यों की थी? हमारी तरह रहते। कुर्बान जाऊं, आखिरी जुमला उसने चांद बानो से कहा। इस सारे हंगामे की जड़ यानी कुत्ता नहायत फ़िक्री नमाक से बिजली के खंभे का गलत इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मैं एतराज़ की पोजीशन में नहीं था क्योंकि खंभे को ज़रा बुलंदी से एक इंसान ने गलत इस्तेमाल किया था। ये किसी हकीम का साइन बोर्ड था जिसमें उसने अपनी हिकमत के दावे के तौर पर मुतअद्दिद डिग्रियां पेश की थी। एक तरफ नए नवेले शादीशुदा जोड़े की मुसव्वराना तस्वीर थी जिसमें मुसव्वर ने तख़य्युल का काबिल सेंसर इस्तेमाल किया था। तुम्हें दरमियान में आने की क्या ज़रूरत थी? चांद मियाँ ने खफकी से कहा। मैं तो भाभी को कैच करने भागा था। मैंने दांत निकाले, लेकिन अनोखी पहलवान ज़्यादा खुशकिस्मत रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? चांद मियाँ मज़ीद खफा हो गए। और इस अनोखी पहलवान को तो मैं देख लूँगा। उसने अपना 25 इंच का सीना फुलाया। अब छोड़ें भी, चांद बानो ने एक अदा से कहा। बेचारे ने अपनी तरफ से तो नेकी की है। मैं गिर जाती तो कितनी चोट लगती, और फिर ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहते। हाँ, मैंने जाते हुए कहा, ऐसा ना हो वो तुम्हें ही कुछ कह दे। ज़ाहिर है मैं शन्नो के सामने एतराफ़ नहीं कर सकता था कि रुखसार का ये निशान किस सिलसिले में बना था। इससे सिर्फ ये होता कि ऐसे ही कुछ और निशानात मज़ीद बन जाते। उसकी तवज्जो हटाने के लिए मैंने धमकी दी, तुमने अब रोने के बजाय असल बात ना बताई तो क्या कर लोगे? शन्नो ने तेवरी चढ़ाई। तो यूं ही रुमाल पेश करता रहूँगा। मैंने सर दाब भरी। वो रानी है ना, क्या वो बेवा हो गई? मैंने मुसर्रत छुपाते हुए कहा, मगर शन्नो ने ताड़ लिया और खा जाने वाली नज़रों से इखलाक सुधार बड़े मियाँ की तरफ देखा तो वो बौखला कर दूसरी तरफ देखने लगे। अगर रानी बेवा हो गई तो तुम्हारी क्यों दांत निकले पड़ रहे हैं? वो दरअसल जो बुढ़ा उसकी जान को चिमटा हुआ है, उसकी बीवी होने से कहीं बेहतर है कि उसकी बेवा हो जाए। मैंने सर खुजा कर कहा। मैंने भी यही कहा था। शन्नो ने नाक सुड़की जब रानी ने रोते हुए बताया कि बुढ़ा दूसरी करने जा रहा है। शादी? मैं दम बखुद रह गया। उसका दिमाग चल गया है। रानी जैसी हसीन और दिलकश लड़की अब उसे कहाँ मिलेगी, बल्कि उसे देगा कौन? रानी की इस बेसाख्ता तारीफ़ पर शन्नो ने एक बार फिर खूंखार अंदाज में बड़े मियाँ को देखा, जिनका नाम भी इत्तेफाक से इखलाक ही था। उन्होंने वापस जाने में ही अपनी आफियत समझी। जैसे रानी मिल गई थी, शन्नो ने जले भुने अंदाज में कहा, तुम भूल रहे हो, बुढ़ा कस्टम में चपड़ासी के आला ओहदे पर फायज है। क्या महकमे ये भी, कस्टम, एक्साइज, एंटी करप्शन और करप्शन की बाबा आदम पुलिस। चपड़ासियों के भी क्या ऐश होते हैं। रानी जैसी बीवी होते हुए भी दूसरी शादी करते हैं और एक हम में 5 साल से फ़कत वादा वसल पर गुजारा कर रहे हैं। बको मत। शन्नो का गुलाबी रंग चिकंदर जैसा हो गया। मेरा दिल बेख्तियार गुस्ताखी करने को चाहा, मगर मैंने ख़ुद को जबर के फ़वाइद याद दिलाए, जिसका फल हमेशा मीठा होता है। मगर मेरे सब्र का फल कुछ ज़्यादा ही पक गया था। मैंने हसरत से शन्नो की तरफ देखा। जामनी कमीज़ और हल्की गुलाबी शलवार के साथ उसी रंग के दुपट्टे में वो गुलाब जामुन नज़र आ रही थी। मेरे घूरने पर वो नज़रें झुकाकर दुपट्टा मरोड़ने लगी। ऐसे क्या देख रहे हो? अपना मुस्तकबिल। मैंने सर दाबरी, जो खासा रंगीन नज़र आ रहा है। आज तुम बैंगन की तरह जामनी हो रही हो, कल तोरी की तरह सब्ज़ थी और परसों अरवी की तरह कथाई थी। ये हालबंद इस्तियारे हैं। मुझे मुस्तकबिल में अपनी खुराक के लिए सब्ज़ी मंडी से रजू करना पड़ेगा। अक्लमंद हो। शन्नो हंसी। हाँ, वरना गोश्त की दुकान से रजू ना करता। गोश्त की दुकान? शन्नो ने ना समझने के अंदाज में कहा, और जब मैंने वजाहत की
उसने शर्मा कर मेरे पाँव पर ठोकर मारी। बदकिस्मती से मैं ट्रेस पास करके उसकी छत की हदूद में था और मज़ीद बदकिस्मती उसने नोकदार जूती पहन रखी थी। मैं पैर पकड़ कर नाचने लगा। शन्नो उल्लू की पट्टी, तुम रोज़ बरोज़ बेहुदा होते जा रहे हो। मैं जा रही हूँ। हाय, ज़रूर जाओ। 1 घंटे से रो रो कर दिमाग ख़राब कर रही थी, अब पाँव तोड़ दिया। तुम्हारी सहेली इसी काबिल है और देखना मैं भी दूसरी। जुमला अधूरा छोड़कर शन्नो के हमले से बचने के लिए मुझे वापस अपनी हदूद में आना पड़ा। 10 मिनट की घुमसान की लड़ाई के बाद जब सीज़ फायर हुआ तो शन्नो ने फ़ौरन रानी का मसला उठाया। जलील, उसका कुछ करो। इस सूरत में तुम्हें कुछ करने से कासिर हूँ। मैंने माजरत की। हाँ, रानी बेवा हो जाए या उसका शोहर उसे तलाक दे दे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो तो मैं भी कर सकती हूँ, शन्नो ने फ़ाइज से कुछ उठाते हुए कहा। मैं बहुत तेज़ भागा था मगर शन्नो का निशाना रवां हो गया था। वो जालिम हसीना प्रैक्टिस भी मुझ पर ही करती थी। हालांकि बारहा समझाया था, जब फ़कत आंख मारने से काम चल सकता है तो हाथ से मारने की क्या ज़रूरत है। बड़े साइज़ का ये कंचा मेरे सर के पिछले हिस्से में लगा। शुक्र है शन्नो ने ज़ोर से नहीं मारा था, वरना सर भी फट सकता था। मैंने सर टटोला तो वहाँ कंचे के साइज़ का गोमड़ बरामद हो रहा था। मैंने मुड़कर शन्नो की तरफ देखा। तुमसे तो बेहतर रानी ही है। अब मैं ज़रूर गौर करूँगा, लेकिन पहले उसके खबीस शोर का बंदोबस्त करता हूँ जो किसी यहूदी की तरह हुस्न शबाब के ख़जाने को दबाए बैठा है। शन्नो को दोबारा फ़र्श की तरफ झुकते देखकर मैंने फ़रारी में आफ़ियत समझी थी। मेरा यारे गार, सदा का बदकिस्मत व बेजार, और जिसका सितारा था कोई दुमदार, इस वक्त किसी आशिक़ नामुराद की तरह मुंह लटकाए फत्तू के कैफ़े डिफोंस की मेज़ नंबर 420 पर बैठा था। फत्तू ने एक नई जिद्दत की थी। मेज़ें तो वही पुरानी थीं जो हालबन दुनिया के पहले कैफ़े डिफोंस में इस्तेमाल की गई थी, मगर उसने उन पर ऑयल पेंट करके उन्हें बाकायदा नंबर दे दिए थे, और नंबर भी खासे अजीब व गरीब अंदाज में दिए थे। अब इस मेज़ को देख लें। कुल 10 मेज़ों के कैफ़े में राजा 420 नंबर की मेज़ पर था। मेज़ 9-2-11 पर अमूमन वो गाहक आते थे जो खा पी कर बग़ैर बिल दिए फ़रार होने की कोशिश किया करते थे। क्या तू यतीम हो गया है? मैंने उसके सामने बैठते हुए दरियाफ़्त किया। या आरिफा ने तुझे आग कर दिया, अपने साबका आशिक की तरह जिसका नंबर मैं भूल गया हूँ। उसका नाम ना ले मेरे दोस्त, राजा ने आबदीदा होकर कहा तो उसकी दाईं आँख से एक आंसू बादले नखास्ता बाहर निकल पड़ा। बाईं आँख का पानी पहले ही मर चुका था। और मेरे बाप का जिक्र करके क्यों मेरे ज़ख्मों पर नमक मिर्च छिड़कता है? आरिफा ने मुझे ट्रिपल क्रॉस किया है। डबल क्रॉस तो ठीक है, मैंने इशारे से फत्तू को चाय भेजने को कहा। जवाब में उसने नहायत इश्तियाल अंगेज़ इशारा किया था, मगर साथ ही छोटे को चाय ले जाने का इशारा किया। हस्बे मामूल उसका डेक मुर्दे जगाने के ऐसे अंदाज में एक बहुत मोटे कवाल की कवाली सुना रहा था जिसकी आवाज़ की दहशत से तबले और सारंगी सहम जाते हैं। अकब में उसकी हमनवा पार्टी में मिनमिना रही थी। राजा गधे, इसने तुझे ट्रिपल क्रॉस कैसे कर दिया? क्या वो बैक वक्त तुझे और किसी और को भी बेवकूफ़ बना रही थी? एक तीसरा अहमक भी था, राजा ने नंबर 2 के साथ कहा। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे बेख्तियार वो बकरी याद आ गई जिसे अम्मा ने नहायत दुलार से पाला था और मैंने उसे ज़बह किया था। दरअसल बकरी बीमार हो गई थी। अम्मा को पता ही नहीं चला कि मैंने उसे चारे में पीस कर वैलियम 5 देना शुरू कर दी थी। बाद में उसका गोश्त खासा ख्वाब आवर साबित हुआ था। अम्मा की ये बकरी मेरे लिए अजाब बन गई थी। उसे रोज़ टहलाने के लिए जाना पड़ता था और बाद में तो उसका किया धरा भी मुझे ही साफ़ करना पड़ता था। जब मैंने कहा कि भैंस का 1 किलो दूध इस बकरी से सस्ता ही पड़ेगा जो ज़्यादा ग़ज़ाइयत वाला होता है, तो अम्मा ने मानने से साफ इनकार कर दिया। भैंस का दूध ज़हन को कुंद करता है लेकिन जिस्म को तो ताकतवर करता है, मैंने दलील दी। ऐसा जिस्म किस काम का मेरे बच्चे जिसमें अकल ही ना हो? अम्मा ने बगौर मुझे देखा। मुसलमान हलाल जानवर मोहब्बत करने के लिए नहीं पालते। जब बकरी ने मुसलसल सोना शुरू किया तो मैंने अम्मा को ख़बरदार किया, ये मरने वाली है, इससे पहले कि हराम हो जाए इसे हलाल कर लेते हैं। पहले तो अम्मा ने इनकार किया मगर बकरी की हालत देखकर अम्मा मान गई। इस रात हमने छत पर तिक्के बनाए थे। शन्नो ने अपने दस्ते ख़ास से मेरे लिए सीखें लगाई थी।
इस रोज़ खाला लाउड स्पीकर का मूड भी इस कदर खुशगवार था कि उन्होंने मुझे शन्नों के साथ मिलकर अमूर खानादारी करने की इजाज़त दे दी, गालिबन मुस्तकबिल की तैयारी के लिए, ताकि मुझे मश्क रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। अम्मा को बकरी के हम से फुर्सत नहीं थी, लिहाजा उन्होंने भी तिक्के खासी रग़बत से खाए थे। तो बकरी ने बवक्त इंतकाल मुलामत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए जैसी आवाज़ निकाली थी, तकरीबन ऐसी आवाज़ इस वक्त राजा के हलक से निकल रही थी। सब्र मेरे यार, मैंने उसे तसल्ली दी। खुदा ने आरिफा को तेरा नेमुल बदल पहले ही अता फरमा दिया है, लेकिन मुझे सब्र जमील क्यों नहीं दिया? राजा ने बिलबिला कर फरियाद की। इसमें भी खुदा की कोई हिकमत होगी, हो सकता है वो तुझे आरिफा से बेहतर चीज़ अता कर दे। मैंने उसे तसल्ली दी। फिर अचानक मुझे ख्याल आया, राजा ये बता कि तुझे रानी कैसी लगती है? ये पूछ कैसी लगती थी? राजा ने सर दा भरी। अब तो वो पुरानी हो चुकी है, गालिबन 2-3 बच्चों की माँ भी बन गई होगी। राजा गधे, उसकी शादी को बमुश्किल 1 साल हुआ है, वो 2-3 बच्चों की माँ कैसे बन सकती है? उस औरत की तरह। राजा ने अखबार सामने रखकर मुझे कायल करने की कोशिश की। एक औरत अपने 6 बच्चों के साथ मुस्कुरा रही थी। बिलाशुबा ख़ानदानी मनसूबा बंदी वालों के लिए ये एक स्याह दिन था। राजा रानी अब तक माँ नहीं बनी है और गालिबन इसका बहाना बनाकर उसका शौहर दूसरी शादी कर रहा है। दूसरी शादी? रानी जैसी बीवी के होते हुए मेरी तरह राजा भी दंग रह गया। साले का दिमाग चल गया है। मैंने राजा से इत्तेफाक किया, किसी दूसरी औरत की तरह। क्या ये खबीस आदमी उसे तलाक दे देगा? राजा ने पुरुम्मीद लहजे में कहा। शायद नहीं। मैंने राजा की उम्मीद पर पानी फेरते हुए कहा। शायद वो चुपड़ी और 2-2 का कायल है, उसकी ऐसी कम तैसी। राजा ने मेज़ पर मुक्का मारा। वो तो होती दूसरी के बाद, लेकिन ये बता कि तूने रानी की तलाक की बात क्यों की? वो यार देखना, वो मैं अभी तक कंवारा फिर रहा हूँ। ये आरिफा तो सिर्फ वक्त गुजारने की एक चीज़ थी। हाँ, उसने अपना वक्त खूब गुजारा। मैंने तबसरा किया जो राजा को पसंद नहीं आया। अगर रानी उस बुड्ढे से पीछा छुड़ा लेती है तो मैं उसे अपनाने को तैयार हूँ। ऐसा हो सकता है, बशर्त यह है कि बुड्ढा रानी को तलाक दे दे और रानी तुझे कबूल भी कर ले। वैसे ही उसके लिए कुएं से निकलकर खाई में गिरने वाली बात है। राजा ने मुझे ऐसे देखा जैसे सूदखोर अफ़गान किसी मकरूज़ को देखता है जिसने पिछले 1 साल से सूद अदा नहीं किया। शन्नों के बारे में क्या ख्याल है? वो कहाँ गिरेगी? वो कहीं भी गिरे। मैंने दांत निकाले। हंसी खुशी और राज़ी और बरज़ा गिरेगी। राजा ने नंबर 4 भरी। हाँ यार, सच्ची मोहब्बत में ऐसा ही होता है। मुझे भी रानी से सच्ची मोहब्बत थी। हाँ, ये मर्ज़ तुझे मोहल्ले की हर लड़की के साथ लाहक हो चुका है और बास के साथ तो 2 बार हो चुका है। राजा ने चाय देखकर बात हज़म कर ली। छोटा बहुत खुश नज़र आ रहा था। उस्ताद ने मेरी तरक्की कर दी है, उसने कहा। अब मैं हेड वेटर हूँ। ये हेड वेटर होता क्या है? वो वेटर जिसका सर होता है, उसे हेड वेटर कहते हैं। राजा ने संजीदगी से कहा। मगर हमारा तो पहले ही सर है। उसने अपना सर हिलाया। तुम्हारा उस्ताद बेवकूफ़ आदमी है, मैंने कहा। उसने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई है? उसने मुंह लटका कर कहा। नहीं, तनख्वाह तो उतनी ही है। इस छोटे को बेवकूफ़ मत समझो। उसके जाने के बाद राजा बोला, गाहकों से टिप के साथ फत्तू के पैसे भी मार जाता है। 4 चाय के पैसे लेता है और फत्तू को 3 के देता है। सारी दुनिया ऐसा ही करती है, मैंने तबसरा किया। मतलब के लिए बच्चा भी चालाक है। आज के लिए बस इतना ही। आगे चलकर देखते हैं कि राजा और जलील मिलकर रानी के शौहर को दूसरी शादी से कैसे बाज रख सकते हैं और इस सिलसिले में वो रानी की क्या मदद कर सकते हैं। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अब मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।